হে ভগবান, কি যে হবে! আজকে তো আমার বড় বোন আসবে শহর থেকে। ও আসলেই তো আমাদেরকে কত কিছু বলে। কি যে হবে! ও আসতেই আমার ভয় লাগে। যাই, বাড়ির কাজগুলো করে নেই। এই চম্পা, চম্পা, এই চম্পা। এটা মার গলা না? হ্যাঁ, মাই মনে হয় ডাকছে। যাই দেখে আসি, কেন জানি ডাকছে। হ্যাঁ মা, তুমি ডেকেছিলে? আমি কাজ করতেছিলাম। কেন ডেকেছিলে গো? আজকে শহর থেকে আমার বড় বোন আসবে। বাড়ির কাজগুলো ভালো মতো করে নে। ঠিক আছে মা, আমি সব করে নিব, তুমি চিন্তা করো না। আজকে মিনালির বড় বোন আসছে শহর থেকে। মিনালির বড় বোন চম্পা অনেক ধনী, তাই ওরা কারোর সাথে ভালো ব্যবহার করে না। মিনালির বাড়ি আসার সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, তাই ওরা খুব রেগে যায়। রেগে সেগে মিনালিকে ডাকতে শুরু করে। এই মিনালি, মিনালি, তাড়াতাড়ি বাইরে আয়, আমি এসেছি। কোথায় আছিস তুই? তাড়াতাড়ি আয়। দিদি, তুমি এসেছো? ভালো হয়েছে, বৃষ্টিতে তো ভিজে যাচ্ছ। তাড়াতাড়ি ঘরে আসো। ও দিদি, তোমার আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? ভালোভাবে এসেছো তো, তাই না গো দিদি? কি যে তুই বলিস না, তোদের গ্রামে আসতে আমার যা কষ্ট হয়েছে তুই জানিস? তোদের গ্রামে তো আমার গাড়িটাও ঢুকে না। কত কষ্ট করে হেঁটে হেঁটে আমি এসেছি জানিস তুই? তোরা কীভাবে এখানে থাকিস? কি আর করবো গো দিদি, আমরা গরিব মানুষ, এইভাবেই চলতে হয়। তুমি তো জানোই তোমাদের জামাইবাবুর বেশি ইনকাম নাই, তাই আমরা টানাটানি করে চলতে হয়। দিদি তোমরা বসো, আমি রান্নাঘরে যাই, তোমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করি। মা, ঘরে যা ছিল তা দিয়ে আমি রান্না করলাম। মাসির কি ভালো লাগবে আমাদের খাবার। চম্পা খাবারগুলো বানিয়ে রূপাকে ডাকতে আসে। বোন, তুমি কেমন আছো? আমি তোমার জন্য খাবার বানিয়েছি, চলো। আচ্ছা চম্পা, তোমাকে একটা কথা বলবো। তুমি যে এই কাপড়গুলো পরছো, তোমার কষ্ট হয় না? বাড়িতে কেউ এইভাবে থাকে? ওফো, আমার তো দেখেই কেমন লাগছে। না, আমার এটা বিন্দার অভ্যেস আছে গো, আমার ভালোই লাগে এটা পরে। তাড়াতাড়ি চলো, আমি তোমাদের জন্য খাবার বানিয়েছি। এই মিনালি, তোকে আমি কতবার বললাম চল শহরে চল, তোর জামাইকে আমি একটা চাকরি দিয়ে দিব, ওইখানেই কাজ করবি, তোর জীবনটা কত ভালো হতো। না দিদি, তোমাকে আমি কতবার বলেছি আমি এখানে খুশি আছি, তোমার জামাইবাবু আমাকে অনেক ভালো রেখেছে। তোমরা এত চিন্তা কেন করো? আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু এখানে অনেক সুখ আছে। তোরা এই খাবারগুলো কিভাবে খাস? আমার তো গলা দিয়ে যাবেই না। আমার তো এইখানে থাকতেও ভালো লাগে না, আমি তোকে দেখতে শুধু আসি। দেখ, এখনও সময় আছে, চল আমার সাথে। মিনালির বড় বোন মিনালিকে অনেক বোঝানোর পর মিনালি মান্তি হয়ে গেল শহরে যাওয়ার জন্য। আর ওরা পরের দিন সকালে বাড়ি চলে যায়। चाँदपुर नाम के गांव में मेहरीन अपनी दादी के साथ रहती थी। मेहरीन बड़ी समझदार और मेहनती लड़की थी। मेहरीन बेटा, तू कहाँ गई थी? घर पे खाने को कुछ नहीं है, मैं क्या बनाऊँ? दादी, आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मेहरीन बाहर चली जाती है और रास्ते में उससे दादाजी मिलते हैं। दादाजी कहने लगते हैं, मेहरीन बेटा, तू कहाँ जा रही है? क्या हुआ तुझे? दादाजी, मैं परेशान हूँ, घर पे कुछ नहीं है खाने को, इसीलिए। घर आते ही दादी फिर से कहने लगते हैं। बुढ़ी दादी की परेशानी देखकर मेहरीन भी बड़ी परेशान थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। मेहरीन ने फैसला किया वो काम की तलाश में बाहर जाएंगे, और वो अपनी दादी को कहकर बाहर जा रही थी। दादी, आप परेशान मत होना, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था। उस जंगल में गांव के लोग नहीं जाते थे, लोग डरते थे। लेकिन मेहरीन बड़ी परेशान थी, घर पे कुछ नहीं था खाने को। दादी भी परेशान थी, इसीलिए वो जंगल से जा रही थी। जाते जाते रात हो गया और वहाँ पे एक बूढ़े आदमी मिलते हैं उससे, और वहाँ पे ही ठहरते हैं वो।
बूढ़े आदमी कहने लगते हैं, बेटा तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रही है? ये जंगल बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे अकेले अकेले मत घूम। मेहरीन ने अपनी कहानी उस बूढ़े आदमी को बोले और वहाँ से चली गई। मेहरीन परेशान होकर जंगल से जा रही थी। रास्ते में उसे एक बोलने वाली बकरी मिलती है। ये देखकर वो चौंक गई। लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं बहुत बीमार हूँ, इस रास्ते को पार करने में मेरी मदद करो। मेहरीन ने उस बकरी की मदद किया और वो एक बड़ा सा पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहाँ पे एक छोटा सा घर था। वहाँ से जोर जोर से आवाज़ आने लगती है, कोई है, मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। ये सुनकर मेहरीन घर के अंदर गई और जाके देखा एक औरत बीमार पड़ी थी। मेहरीन ने उस औरत की मदद किया, उसकी सेवा की। बीमार औरत ने उससे पूछने लगते हैं, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? मेहरीन ने अपनी कहानी बताई। उस औरत ने उससे बोला, जंगल में एक बाबा जी रहते हैं, तुम उस बाबा जी के पास जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए वो तुम्हारी मदद करेंगे। मेहरीन उस औरत की बात सुनकर उस बाबा जी के पास जाते हैं और उससे अपनी हर बात बोलने लगते हैं। बाबा जी ने कहा, मैं तेरी मदद करूँगी, तू एक अच्छी लड़की है, तू इस रास्ते से सीधे जाते रहना, तुझे एक बड़ा सा गुफा मिलेंगी और उस गुफे के अंदर तुझे बहुत सारा खजाना मिलेंगे। तो वहाँ से अपनी हिसाब से खजाना लेके आना, लेकिन कोई लालच मत करना। मेहरीन ने उस गुफे के अंदर जाके देखा, अपने चारों तरफ खजाना ही खजाना। मेहरीन ने लालच ना करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से खजाना लेकर गांव लौट आई और गांव के लोगों को भी मदद की और अपनी दादी के साथ रहने लगी। उसने एक बड़ा सा घर लिया। अब दोनों दादी पोती बहुत खुश थे। रामपुर नाम की एक गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो लड़का बहुत मेहनती था, पूरा दिन खेतों में काम करते रहते थे। वो एक किसान था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो किसान होने के कारण उससे के साथ कोई शादी नहीं करना चाहते थे। माँ, आप कहाँ हो? मैं घर आ चुका हूँ, आप बाहर आइए। माँ, कहाँ है आप? क्या हुआ तुझे, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं बुढ़ी औरत घर का काम कर कर के थक गया हूँ। माँ, आप इतनी परेशान मत रहा करो। मैं परेशान ना होके क्या करूँ, घर का अकेले अकेले काम कर कर के थक गया हूँ। तू अब शादी कर ले, मैं अकेला घर नहीं संभाल सकती। रोहन बेटा, उठ जा, कितना सोएगा? मैं पूरा घर का काम करके तुझे भी उठाऊँ तो खेतों में नहीं जाएगा क्या? रोहन की माँ ने रोहन को उठाया और रोहन खेतों में चला गया। तभी गाँव की एक औरत आई। बिमला, तू आई है, अच्छा हुआ तू आई है। तू मेरे बेटे के लिए एक लड़की देख, उसका शादी की उम्र चला जा रहा है। चाची, मैं कोशिश कर रही हूँ, जल्द आपकी बेटी के लिए एक लड़की मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर बिमला घर चली गई। मेहनती रोहन खेतों में रोज़ की तरह काम कर रहा था। वो आज पूरा दिन काम करने के बाद जंगल से घर जा रहा था और रास्ते में जाते जाते खुद से बात करने लगे। पता नहीं मुझ में क्या कमी है जो कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा। पता नहीं मेरा शादी होगा भी नहीं। माँ इतनी परेशान है घर का काम को लेकर। ये कहकर रोहन अकेले ही जा रहे थे। घना जंगल से वो गुजर रहा था। जाते जाते रात हो गया, लेकिन जंगल में एक खूबसूरत लड़की बैठा हुआ था। वो सोच रही थी कि इतनी रात में क्या कर रहे हैं। वो पूछने लगे, आप कौन है और इस अंधेरी रात में अकेले यहाँ पे क्या कर रही है? आप कौन है? आप मेरे नाम मीना है। मेरी सौतेली माँ और बहन ने घर से निकाल दिया। मैं इस रात में कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है। मीना, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएंगे। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो मेरे घर। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं और मेरी माँ ही रहते हैं।
रोहन अनजान लड़की को घर ले आया और वो अपनी माँ को बुलाने लगे। माँ, माँ, कहाँ है आप? देखिए कौन आया है, जल्दी आइए। माँ, ये मीना है, ये आज से हमारे घर पे ही रहेंगे। ये मुझे जंगल में मिला। तू किसी अनजान लड़की को घर लेकर आ गया और कह रहा यही रहेगा। कौन है ये? ना हम इसे जानते हैं, ना तू जानता है। रोहन के समझाने पर उसकी माँ ने मीना को घर पे रहने दिया और मीना और उसकी रोहन की माँ बात करने लगे। मीना बहुत समझदार थी, मीना बहुत प्यारी भी थी। मीना से बात करते ही रोहन की माँ को मीना पसंद आने लगी। मीना, तू घर का काम कर लेती है ना बेटा? दिखने में तो बड़ी सुंदर है तू काम भी कर लेता होगा, मुझे विश्वास है। इधर सौतेली माँ और बहन परेशान हो रही थी मीना के लिए। पता नहीं तेरी वो कलमही बहन कहाँ चली गई है। घर से तो गया लेकिन टेंशन छोड़ के गया। ना आप परेशान मत हो, हम पापा को बोल देंगे कि वो किसी लड़के के साथ भाग गया। देख लेना, आप वही विश्वास करेंगे। मीना रोहन के घर पे बहुत खुश थे। रोहन की माँ और रोहन उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रोहन ने, मीना, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पता नहीं तुम क्या सोचोगी। क्या मैं बोलूँ? बोल सकती है आप। मीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसान हूँ। क्या तुम करोगी शादी? बात बोलूँ आपसे, जब से आप मिले हो मुझे भी आप पसंद आने लगे हो। जिस तरह आप मेरे ख्याल रखते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप। आपकी माँ भी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे ज़रूर शादी करूँगी। मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। रोहन ने मीना से शादी कर लिया। अब उसकी माँ बहुत खुश है क्योंकि उसकी बेटी की शादी हो चुकी है। इधर मीना और रोहन दोनों बहुत खुश है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगे। एक छोटी सी गांव में विदुर व्यक्ति रामू अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। रामू ने कई साल तक अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की, लेकिन जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होने लगी उसे एक मां की जरूरत महसूस होने लगी। उसके बड़े भाई और भाभी ने सलाह दिया, रामू, तू कब तक अकेले ही अपने बेटी को पालेगा? मेरी मानो तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता, जिससे तेरी बेटी को भी माँ का प्यार मिले। अपने बड़े भाई की सलाह पर रामू ने दूसरी शादी कर ली। रामू की दूसरी पत्नी सीमा शहर की पढ़ी लिखी महिला थी। जब वो पहली बार घर आई, गुड़िया दी, चाचू तो दूसरी शादी करने चले गए, अब तुझे प्यार नहीं करेंगे। ये सुनकर गुड़िया रोने लगी। वो पहली बार घर आई तो गुड़िया दूर दूर रहती थी। वो सोचती थी कि सौतेली माँ बुरी होती है और प्यार नहीं करती, जैसे उसने कहानियों में सुना था। सीमा बोलने लगी, देखिए ना, मैं गुड़िया को इतना प्यार देना चाहती हूँ, उसे अपनाना चाहती हूँ, उसे माँ की ममता देना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे पास आती ही नहीं है। मैं क्या करूँ, बोलिए ना। रामू बोला, देखो सीमा, तुम परेशान मत हो, तुम अभी इस घर में नहीं हो, इसलिए वो तुमसे डर रही है। सीमा ने भी धैर्य किया और उसने धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश की। वो उसके बाल संवारती, उसका ख्याल रखती, उसके मनपसंद खाने बनाती। एक दिन गुड़िया बीमार पड़ गई। सीमा रात भर जगकर उसकी सेवा की, उसे दवा दिया और उसके सर पर पट्टी फेरती रही। ये सब देखकर रामू बोला, सीमा, तुम आखिर कितने देर तक जागती रहोगी? तुम अब आराम करो, गुड़िया के पास मैं बैठता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। सीमा बोली, नहीं जी, मैं गुड़िया को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे नींद नहीं आएगी, आप जाइए, मैं उसके पास ही बैठूंगी। सुबह जब गुड़िया ने आँख खोली तो उसने देखा कि सीमा उसके पास ही बैठी थी और उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसकी सौतेली माँ को उसके पास देखकर गुड़िया की आंखें भर आई, क्योंकि गुड़िया हमेशा उससे दूर दूर रहती थी और उससे बात भी नहीं करती। गुड़िया ने सीमा की हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा, क्या मैं आपसे आपको माँ बुला सकती हूँ? ये सुनकर सीमा की आंखें भर आई और उसने गुड़िया को गले से लगा लिया। कुछ साल बाद वो एक बच्चे को जन्म दिया।
रामू उस बच्ची और सीमा को घर ले आया। ये सब देखकर गुड़िया खुशी से उछलने लगी। गुड़िया अपनी छोटी बहन देख के बहुत खुश हो गई थी। देखते देखते वो छोटी बच्ची भी बड़ी हो गई और वो चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से भी बढ़ के होते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन किसान था। मोहन की 3 बेटी थी। मोहन अपनी तीनों बेटी से बहुत प्यार करते थे। मोहन कहीं से भी आते थे तो मोहन अपनी तीनों बेटी से मिलते थे और बात करते थे। मोहन की तीनों बेटी भी मोहन से बहुत प्यार करते थे। गांव के लोग मोहन की 3 बेटी होने के कारण उसकी बीवी को बातें सुनाते थे। कैसी हो सुनीता? तुम्हारी तीनों बेटी कैसी है? बेटी होना कितना मुश्किल होता होगा ना तुम्हें? हाँ, कैसी बात कर रही हो दीदी? मेरी तीनों बेटी बहुत समझदार है, बहुत काबिल है। आप देख लेना, वो बड़े होके कुछ करेंगे। मोहन की बीवी बहुत परेशान थी दूसरों की बातें सुनकर। तो भी मोहन आया और मोहन ने पूछने लगा, क्या हुआ सुनीता? क्यों इतनी परेशान हो? देखिए ना, गांव की औरतें मुझे कितनी बातें सुनाते हैं। सुनीता, तुम परेशान मत हो। देख लेना, हमारी तीनों बेटी एक दिन हमारी नाम रोशन करेंगे। ये कहकर मोहन खेतों में चले गए। रास्ते में उससे रीता मिली। रीता उससे बोलने लगे, काका, आप अपनी दोनों बेटी को शहर के स्कूल में भेज दीजिए। वो पढ़ लिख कर कुछ करेंगे। ये बात आकर मोहन अपनी बीवी से बोलने लगे। मोहन और उसकी बीवी ने मिलकर अपनी दोनों बेटी को शहर के स्कूल में देने के लिए फैसला किया। यह सुनकर मोहन की दोनों बेटी बहुत खुश थे। वो लोग स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। अगले दिन मोहन ने अपनी दोनों बेटी को लेकर शहर जाने की फैसला किया। वो तीनों शहर जा रहे थे स्कूल में एडमिशन देने के लिए। शहर जाते ही मोहन की दोनों बेटियां बहुत खुश हो रही थी क्योंकि शहर बहुत सुंदर था। मोहन की दोनों बेटी ने पहली बार शहर देखा तो वो लोग बहुत खुश थे। स्कूल में एडमिशन देकर मोहन घर चले आए। मोहन दुखी थी क्योंकि उसकी दोनों बेटी को वो वहाँ छोड़ के आए। कुछ साल बाद मोहन की तीनों बेटियों ने बहुत मेहनत किया और पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। वो तीनों ही बड़े बड़े नौकरी करने लगे। मोहन की तीनों बेटी काबिल हो चुका था। मोहन की तीनों बेटी ही बड़े बड़े नौकरी करने लगी। अब गांव के लोग मोहन की तीनों बेटियों की तारीफ करते थे। मोहन की तारीफ करते थे। मोहन की तीनों बेटियों ने मोहन के नाम रोशन किया है। अब मोहन और उसकी तीनों बेटी शहर में आ चुके थे। शहर में वो लोग रहने लगे। अब मोहन अपनी बेटियों से बहुत खुश थे। मोहन की बीवी भी बहुत खुश थे और पूरा परिवार खुश। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक बच्चा रहता था। रवि बहुत समझदार और मेहनती था, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे। रवि को स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन हर माह स्कूल की फीस देना उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट किया कि जो बच्चे फीस नहीं भर पाएगा उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर रवि का दिल टूटा। उसने सोचा, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। ये सोचकर छोटे बच्चे की आंखें भर आई। पापा प्रिंसिपल ने फीस देने को कहा। जो बच्चा फीस नहीं देगा उसको स्कूल से निकाल देगा। रवि, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, रवि की पिता ने कहा। रवि के फीस आपने नहीं दिया है। फीस नहीं देंगे तो हमें आपकी रवि को स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर, मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं फीस की इंतजाम करता हूँ। भाई मोहन, इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ। रवि की स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा फीस ना दे पाया तो रवि को स्कूल से निकाल देगा। रमेश, कैसे हो? मैं बहुत परेशान हूँ। रवि की स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा फीस ना दे पाया तो रवि को स्कूल से निकाल देगा।
सुनीता, हमारे रमेश बहुत परेशान है रवि की फीस को लेके। रमेश की पत्नी ने खेती करने के नए आइडिया दिया। वो कह रही थी कि उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए पौधन और ज़मीन के लिए ये बेहतरीन है। रमेश की पत्नी का कहना था कि वो खुद से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि घर के सब्जियों के छिलके, जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में मददगार होते हैं। रमेश की पत्नी ने ये भी कहा कि उन्हें मार्केट डिमांड के हिसाब से उन्हें सीजनल क्रॉप्स का चयन करना चाहिए, जिससे उनकी बेचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस प्रकार के नए तरीके अपनाकर अपने खेती को सुधर सकता है और अच्छे मुनाफा कमा सकता है। पत्नी की बात मानकर रमेश बहुत मेहनत किया और एक दिन बहुत सारा पैसा कमाया। रमेश ने फिर एक घर लिया, पत्नी और रवि के साथ फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह रमेश की जिंदगी अच्छा हो गया। बहू, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता, अकेले अकेले बहुत परेशान हो। माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती, काम है, काम पे तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, तू सही कह रही है, तू जा काम पे बेटा। दादी ने अपने बेटे और बहू से बात किया। वो उस घर पे बहुत परेशान थे। उसको अकेले अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही जॉब करते हैं तो बाहर चले जाते थे। उसके पोता स्कूल चले जाते थे, तो उनको बिल्कुल अकेले अकेले घर पे रहना पड़ता था। तो वो परेशान होके अपने कमरे में अकेले बैठे थे। तभी उसकी पोता आया और आके उससे कुछ बोलने लगा। दादी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ आपको? देखो, तुम सब चले जाते हो, मैं घर पे अकेले अकेले बोर हो रही हूँ। दादी, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, फिर आपको अच्छा लगेंगे। आप वीडियो बनाना शुरू करोगी ना तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दादी ने अपने पोते की बात सुनकर अपनी यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। दादी ने अपनी फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया। शुरू में व्यूज़ बहुत कम आते थे, लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट पर पूरा भरोसा था। जैसे जैसे उनका चैनल ग्रो होने लगा, उन्होंने ऑडियंस के फीडबैक पर ध्यान दिया। दादी कमेंट सेक्शन पे ऑडियंस से बात करते थे। ऑडियंस के हिसाब से वो वीडियो डालने की कोशिश करते थे। वो ऑडियंस से पूछते थे उनको किस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, और उनकी कमेंट के हिसाब से वो अपनी वीडियो डालने की कोशिश करते थे। इस तरह उनकी कम्युनिटी के लोग उसे बहुत सपोर्ट करने लगे और उसकी चैनल ग्रो होने लगे। उनकी चैनल पे बड़े बड़े लोग आने लगे। दादी बहुत बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू लेना शुरू किया और उनकी इंटरव्यू हर किसी को पसंद आने लगे। वो दादी जी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। अब उनकी चैनल पे हर कोई आना चाह रहे थे। दादी अब बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। दादी जी के चैनल पे मिलियंस पे व्यूअर्स आते थे। दादी जी बहुत पैसे भी कमा रहे थे। उनको अब बड़े बड़े शो पे बुलाए जाते थे, वहाँ पे उनका इंटरव्यू भी लिया जा रहे थे। दादी जी बहुत खुश थी अपनी सक्सेस से। अब उसकी परिवार भी बहुत खुश थे उनसे। दादी अब बहुत खुश थे। अब उनके समय किस तरह जाते थे उनको पता ही नहीं चलते थे। एक हरियाली गांव में एक परिवार रहता था। वहाँ 4 लोग रहते थे, माता पिता भाई बहन। रामू बड़ा लड़का था। छोटी बेटी का नाम राखी था। बड़ा बेटा रामू का नीट का रिजल्ट आ गया था। मम्मी पापा ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे कि बेटे को मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। बेटा भी खुशी से उछलने लगा। दूर दूर से लोग उसे सम्मानित करने के लिए घर में आ गए थे। रामू और उसके माता पिता बहुत खुश थे। उसके साथ रामू की माँ दुखी भी थी कि बेटा पहली बार बाहर घर से जा रहा था। वो बेटे को समझाने लगी कि बेटा ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारा पापा और मेरा नाम और मेरा सर झुके। लेकिन रामू बहुत घमंडी था।
मेडिकल कॉलेज में जाते ही उसका मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की से मुलाकात करने के बाद ही उसने प्लान बना लिया, अभी वो लड़की को फंसाएगा। फिर वो लड़की को मीठी मीठी बातें बोल के उसे फंसा लिया। भोली भाली लड़की को तो पता भी नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है। रामू अपने असाइनमेंट्स और अपने कॉलेज के काम लड़की से करवाता। जब कैंटीन में दोनों चाय पीने जाते थे, दोनों चाय वाय पी के लड़का पहले ही निकल जाता था क्योंकि उसे पैसा देना पड़ता। बेचारी लड़की के पास पैसा नहीं होने से भी उधार करके दे देती थी। लड़की उस लड़के के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। दोनों घूमते फिरते रहते थे, दोनों एक साथ बहुत खुश भी था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। लड़के के असलियत के बारे में लड़की को पता चलने लगा और लड़की झगड़ना शुरू कर दिया। और दोनों में इतनी ज़्यादा झगड़ना शुरू हुआ कि वो लड़का परेशान हो गया और वो दूसरों को बोलने लग गया। वो झगड़ा करते करते फिर दोनों ने फैसला किया कि इस तरह झगड़ा करने से अच्छा है कि दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोनों ने फैसला किया अब दोनों भाई बहन बन के रहेंगे। अब लड़की ने भी मान लिया। लड़की ने उस लड़के को भाई बना लिया और लड़के ने उस लड़की को बहन बना लिया और दोनों भाई बहन अब खुशी खुशी रहने लगे। হে ভগবান, কি যে হবে! আজকে তো আমার বড় বোন আসবে শহর থেকে। ও আসলেই তো আমাদেরকে কত কিছু বলে। কি যে হবে! ও আসতেই আমার ভয় লাগে। যাই, বাড়ির কাজগুলো করে নেই। এই চম্পা, চম্পা, এই চম্পা। এটা মার গলা না? হ্যাঁ, মাই মনে হয় ডাকছে। যাই দেখে আসি, কেন জানি ডাকছে। হ্যাঁ মা, তুমি ডেকেছিলে? আমি কাজ করতেছিলাম। কেন ডেকেছিলে গো? আজকে শহর থেকে আমার বড় বোন আসবে, বাড়ির কাজগুলো ভালো মতো করে নে। ঠিক আছে মা, আমি সব করে নিব, তুমি চিন্তা করো না। আজকে মৃণালীর বড় বোন আসছে শহর থেকে। মৃণালীর বড় বোন চম্পা অনেক ধনী, তাই ওরা কারোর সাথে ভালো ব্যবহার করে না। মৃণালীর বাড়ি আসার সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, তাই ওরা খুব রেগে যায়। রেগে সেগে মৃণালীকে ডাকতে শুরু করে। এই মৃণালী, মৃণালী, তাড়াতাড়ি বাইরে আয়, আমি এসেছি। কোথায় আছিস তুই? তাড়াতাড়ি আয়। দিদি, তুমি এসেছো? ভালো হয়েছে, বৃষ্টিতে তো ভিজে যাচ্ছ, তাড়াতাড়ি ঘরে আসো। ও দিদি, তোমার আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? ভালোভাবে এসেছো তো, তাই না গো দিদি? কী যে তুই বলিস না, তোদের গ্রামে আসতে আমার যা কষ্ট হয়েছে তুই জানিস? তোদের গ্রামে তো আমার গাড়িটাও ঢুকে না, কত কষ্ট করে হেঁটে হেঁটে আমি এসেছি জানিস তুই? তোরা কীভাবে এখানে থাকিস? কী আর করবো গো দিদি, আমরা গরিব মানুষ, এইভাবেই চলতে হয়। তুমি তো জানোই তোমাদের জামাইবাবুর বেশি ইনকাম নাই, তাই আমরা টানাটানি করে চলতে হয়। দিদি তোমরা বসো, আমি রান্নাঘরে যাই, তোমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করি। মা, ঘরে যা ছিল তা দিয়ে আমি রান্না করলাম। মাসির কি ভালো লাগবে আমাদের খাবার। চম্পা খাবারগুলো বানিয়ে রূপাকে ডাকতে আসে। বোন, তুমি কেমন আছো? আমি তোমার জন্য খাবার বানিয়েছি, চলো। আচ্ছা চম্পা, তোমাকে একটা কথা বলবো। তুমি যে এই কাপড়গুলো পরছো, তোমার কষ্ট হয় না? বাড়িতে কেউ এইভাবে থাকে? ওফো, আমার তো দেখেই কেমন লাগছে। না, আমার এটা বিন্দার অভ্যেস আছে গো, আমার ভালোই লাগে এটা পরে। তাড়াতাড়ি চলো, আমি তোমাদের জন্য খাবার বানিয়েছি। এই মৃণালী, তোকে আমি কতবার বললাম চল শহরে চল, তোর জামাইকে আমি একটা চাকরি দিয়ে দিব, ওইখানেই কাজ করবি, তোর জীবনটা কত ভালো হতো। না দিদি, তোমাকে আমি কতবার বলেছি আমি এখানেই খুশি আছি, তোমার জামাইবাবু আমাকে অনেক ভালো রেখেছে, তোমরা এত চিন্তা কেন করো? আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু এখানে অনেক সুখ আছে। তোরা এই খাবারগুলো কিভাবে খাস? আমার তো গলা দিয়ে যাবেই না, আমার তো এইখানে থাকতেও ভালো লাগে না, আমি তোকে দেখতে শুধু আসি। দেখ, এখনও সময় আছে, চল আমার সাথে। মৃণালীর বড় বোন মৃণালীকে অনেক বোঝানোর পর মৃণালী
মান্তি হয়ে গেল শহরে যাওয়ার জন্য। আর ওরা পরের দিন সকালে বাড়ি চলে যায়।